So are you able to see the screen? Yes, I am. So in this, so in the CISA, you have seen that there are five number of domains. So first is the information systems auditing processes and Right. governance and management of IT, information systems acquisitions, development and implementation, information systems operations and business resilience, and production of information assets. So the matter of fact that guys, I'm just going to provide you all the informations about regarding it. The more Mm-hmm. theoretical concept, everything is going through all those books which I'm saying to you on the drive, so that you have good idea about it. All those things. Mm-hmm. That's why I'm Got going it. to prefer you share you some drives as well. Okay. So just move for other things. So in the first domain, first you know what the planning and the execution things will be there into the first thing. So if you just take a look Okay. into the planning and execution sort of stuffs, yes. So the first of all, the introductions about CISA, why it is required. So first of all, I will going to refer you just going to the website so that you are going to understand all those stuffs. There it is. This is the website. So always, you know what, once anybody is going to study the CISA or CISM, okay, all those information. So this, first of all, review the website that is the worthwhile for you. This CISA is overview is there. So why CISA? Going for the CISA, SWIG, CISM, CGEIT, XEXP, and CDSP. Okay, this COVID is one of them certification. CCX is also one of their career pathway. So just go through this particular website so that you're just going Okay. to have basic fundamentals idea that what is all about. So if we're just going about the CISA is one of them certifications, the Certified Information Systems Auditor sort of stuff. So the CISA is a worldwide recognized certificate. You know what? Okay, and if you're going for more informations, so CISA overview. Okay, CISA is right for you or it's not for you. So this all information is also available that is the right Right. certifications for you or why I hire a CISA so that 90% are more effective drums and 70% improved experience and efficiency and 94% employees uh, that attend with investment in training sort of things. Okay, and if you're just Got talking it. about Got it. the differences, so the information systems auditing processes, so it is going to be understand some processes of information security systems, how to do auditing, what are different processes of audit, all those terms, Mm. and governance and management of IT. So different governance. Okay, the responsibilities, the top management stakeholders, what they're doing it, what's the responsibility, security professional sort of things. So this is real-time case studies, the governance talking about. Then the Mm. information systems acquisitions, development, and implementations. So these are the you know what the domains we just talking about in the particular slide here. It is these are some slides. All those things is available into the same the website. The information system, Okay. so CIA terms, ITPS, and acquisition, how the companies are going to be acquisitions and you know what mergers, okay, the development and Mm. implementations, how to implement the information security and how going to be doing the implementations, migrations, changes, okay, and so if we're talking about some ITOGAF, COBIT, ITL, different frameworks, the Mm. governance, okay, the compliances. So there are multiple things that comes to the picture, my dear friends, and also the information systems operations and business resilience. So how the information systems are going to be working, how the operations management is going to working. So operational risk we are talking about into the same. So there we have some different type of operational risk and how to mitigate all those particular risks and how the business is going to be working. Production of information assets. So we have different types. Okay, the information security things or security controls, and we have in cybersecurity threat modeling models. We have to identify some threats and assets of the company, and then we're going to protect in different ways. So this is the CISA thing is there. CISA is
practice details. So learn more, prepare for examinations if you're going for the practice examination. So the practice which 10 questions will be available so that you can just take a look and take the path of the examination. So okay, so 90 days registration date is there. So you can go for the examinations and apply to get certified. So it is, pass the CISA exam within the last, last 5 years, have the relevant work time experience in the CISA practice areas, okay, submit CISA sort of things. So maintain, how do you going to maintain the your CISA certification? Yes, CTs and stuff. Yeah, all this is fine. Okay, so this is all things fine. Just going to take a look from your side, okay? Okay, so Got it. and I'm also provide you some informations like that's the salary benchmark. So we are security professionals, right? So as an information security prospect. So how much salary you can going to be expect once you are information security CISO or CTO? This is the 2020. What books is there? The salary structures benchmark is there. So suppose you are corporate IT departments. Okay, this is for technology sort of things. So salary tables is there. So MNCs and domestic companies and listed or non-listed companies. Okay. You can expect. Okay, so base salary range is 12 months of INR, like okay, Indian rupees in lakhs. So suppose you are a CIO or IT director, so infrastructure, cloud and data centers, application ERP, CISO, information security and cyber security, or service and delivery or IT operations, project management sort of things. Okay. So suppose you have 5 to 10 years experience. So the minimum salary, average salary, and maximum salary you will get it. This is 10 to 15 years minimum, average, and maximum salary. 15 plus experience. So these sort of salary structures. Got it. More than 15 years experience, so you will find it out this one. Okay, this is for the corporate ITs, and if you are suppose you are working as a quality assurance project product management or CTO, head of engineering, okay, design and architecture sort of things. So this is the minimum salary and to maximum salary. So this is the benchmarks things. You're just going to 2 years of that you're going to withstand all those things. So I'm just also going to send you these things because this is the benchmark salary for India only. I'm just going to check it from your own locations as well. Okay, so let's move further into this, and we have some basic introductions I'm talking about here. So guys, second. I think you have seen it. So CISA is one of them, right? So we have checked it this, the process of auditing information, governance, and information management. Yeah, all that's fine. So you have all those things you have taken. 5 domains you have studied. Perfect. So I think we have gone through the 5 domains, the introductions part, the information security audit standards. We have different type of standards we just talking about, okay, and guidelines and code of ethics. So we need to study about the standards, the policies, the guidelines, the baselines, how you're going to create this particular all those stuffs. Okay, so these are some directive controls, right? So in the directive controls, like the policies. So have you ever created any type of policies like password policies or the HR policies, IT policies, database policies, or what finance policies, traveling policies, and anything? Have you ever created or not created till now? We have मेरी जो पुरानी कंपनी है उसके अंदर हम लोगों ने पासवर्ड पॉलिसी बनाई थी वो PCI-DSS because PCI-DSS states that you need to have I think an 8-character password. I don't know, it's not very secure. But 8-character password with the alphabets and numbers. I don't think they mention anything about special characters. आपको पता होगा उस चीज के बारे में ज़्यादा. Yes, right. ये चीज हम लोगों ने करी थी and then password rotation policy बनाई थी कि यार मतलब 90 days में 3 महीने में पासवर्ड जो है वो चेंज होंगे. That is without any question. The system would force you to change your password if you did not do it on your own. Right. So we did it. ये सब policies हम लोगों ने बनाई थी.
पुरानी कंपनी के अंदर। तो जो ये दिस प्लानिंग की बात करते हैं, राइट? इफ यू टॉकिंग अबाउट प्लानिंग पार्ट, अगर आप पीएमपी करते हो या फिर सीजा करते हो, सीजन करते हो, सीएसपी करते हो, प्लानिंग जो पार्ट है वो हर एक जगह रहेगा। मैनेजमेंट इसमें प्लानिंग हमेशा रहेगा, क्योंकि what happened, I already suggest you some time ago that this CISA certification is techno managerial, okay? Technical plus managerial, both things में आती हैं, जी right? तो आपको इसमें मैनेजमेंट का फ्लेवर तो डालना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट फ्लेवर्स इट मींस द स्कोप ऑफ वर्क, कि क्या चीज मेरे स्कोप में है, क्या चीज मेरे स्कोप में नहीं है। जो मेरे स्कोप में नहीं है मैं उसको नहीं करूंगा, सिंपल, राइट? गॉट इट, ठीक है एंड ठीक आपका जो है, कोस्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि हर एक चीज का कॉस्ट लगता है ना, वो तो कॉस्टिंग होती है ना? तो कॉस्ट जी मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि आप ऐसे पीएमपी भी काम कर रहे हो उसके अंदर, और एज ए टेक्निकल भी काम कर रहे हो आप इसके अंदर। तो अगर हम बात करते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करते हैं, तो हाउ डू यू लीडिंग ए प्रोजेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग करता है बंदा, वो स्ट्रेटेजी क्रिएट करता है, ठीक है? और जो आर्किटेक्चर क्रिएट करता है, डिजाइनिंग क्रिएट करता है। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ, राइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉगएफ, ओके, या मैं कॉबिट की बात करता हूँ, तो हम एक सिक्योरिटी इंटरप्राइज आर्किटेक्चर की बात करते हैं, है ना, कि इंटरप्राइज में जी आर्किटेक्चर कैसे रहेगा आपकी कंपनी के अंदर। अब कंपनीज भी, यू नो व्हाट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनीज हो सकती हैं, कि जैसे कि स्मॉल कंपनीज है ना, एक मीडियम साइज हाँ हाँ कंपनी, एक एंटरप्राइज लेवल कंपनीज, है ना? तो स्मॉल कंपनी का जो इंटरप्राइज आर्किटेक्चर डिजाइनिंग होगा वो अलग टाइप का होगा, हाँ हाँ और मीडियम साइज का एक अलग अपना अलग टाइप का होगा, एक एंटरप्राइज लेवल पे एक अलग होगा। तो जब हम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, हम सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, मैं एक एंटरप्राइज लेवल आर्किटेक्चर में जो बिजनेस रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ, तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ये आपस में एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जिसको आपको थोड़ा सा आइडिया अच्छा हो जाएगा उससे। देखिए इसमें क्या होता है, दिस इज द स्लाइड फॉर, यू नो व्हाट, टॉगएफ की स्लाइड है ये। हम्म तो टॉगएफ में क्या होता है कि आर्किटेक्चर वर्जन, बिजनेस आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर्किटेक्चर्स, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर्स, अपॉर्चुनिटीज एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्चर्स, माइग्रेशन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन गवर्नेंस, आर्किटेक्चर चेंज मैनेजमेंट, ठीक है? सबसे पहले प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सक्सेसफुल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। कि आपको प्रीलिमिनरी जो चीजें होती है, कि आपका जो कंपनी का आर्किटेक्चर है, डिजाइनिंग कैसा होगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो हम जब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की बात करते हैं, या फिर हम गाइडलाइंस की बात करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, राइट? तो आपको जो कंपनी के विजन क्या है, मिशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वो सब आपको जानने पड़ेंगे। आप किस बिजनेस को कितना जानते हो, कितना इन्वॉल्व हो बिजनेस के अंदर, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस को क्या चाहिए। तो जो स्टेक होल्डर्स मीटिंग होती हैं, जो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हो, या फिर आप मीटिंग्स में बैठते हो, तो मान लीजिए एक कंपनी है, तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स होते हैं कंपनी के, यानी कि वर्टिकल साइज भी होता है ना? और कंपनी का जो हम्म किस टाइप की इंडस्ट्री है इसके अंदर, और कौन कौन से कंप्लाइंस होते हैं इसके अंदर, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, क्या क्या रिक्वायरमेंट जी एज ए आईटी ऑडिटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है उसके अंदर, एज पर द कंप्लाइंस के अकॉर्डिंगली। तो आपको हम्म एज ए गाइडलाइन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए एग्जैक्टली वंस यू गोइंग फॉर द ऑडिटिंग एक एज ऑडिटर, यू शुड बी अंडरस्टैंड द बिजनेस लॉजिक फर्स्ट, कि उनका बिजनेस का लॉजिक क्या है, इस कंपनी को रिक्वायरमेंट भी है या नहीं रिक्वायरमेंट है, राइट? मैंने अभी पहले आपको बोला, आई हैव सजेस्ट यू वी हैव स्मॉल कंपनीज, मीडियम साइज कंपनी, एंटरप्राइज लेवल कंपनीज, राइट? तो किस जी कंपनी में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो गैप एनालिसिस करना होता है ना? इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, एसओए भी आपको करना पड़ता है ना? थर्ड चीज की SOA, आपको what is statement of what? What स्टेटमेंट is ऑफ SOA क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल है या नहीं है एसओए स्टेटमेंट। तो ऑडिटर जो है उसको SOA करना होता है। एसओए मतलब इसमें क्या होता है कि, और ऐसे ऑडिटर नहीं, ऐसे आप एक मैनेजर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मैं ऑडिटर तो बाद में बनोगे अच्छा आप, पहले मैं एज ए एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं आपसे भी, कि ठीक है। कौन 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 सी चीजें एप्लीकेबल हैं, कौन सी एप्लीकेबल नहीं है इसके अंदर। तो आप ऑडिट, जब आप ऑडिट भी करते हो, अच्छा लाइक इफ यू गोइंग फॉर आईएस 27000 या फिर सीसा या फिर कोई भी सॉक्स का करते हो, तो जो कंप्लाइंस होते हैं या फिर जो जैसे इनेक्शंस होते हैं, अगर आपने देखे हो, तो वो कौन कौन से हम्म एप्लीकेबल हैं या कौन से एप्लीकेबल नहीं है,
वो आपको देखना पड़ेगा कि ठीक है। कंपनी में वो डिपार्टमेंट भी है या नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी है या नहीं है। तो जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर, ये दिस इज ये स्टॉक ऑफ आर्किटेक्चर जो होता है, अब कंपनी में हर एक चीज अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम इसको लगाना जरूरी है क्या? नहीं लगेगा, सिंपल सी बात हाँ, बात तो ठीक है ना। तो जो चीज अवेलेबल है, जो चीज की रिक्वायरमेंट है, जो चीज हम देखना चाहते हैं, वो चीज के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लगती है उसके अंदर। क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल? अगर वो एप्लीकेबल है तो लगाएं, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब 114 कंट्रोल्स होते हैं, तो है। सभी के सभी नहीं रखते हैं, ठीक है। समझ आ गई। तो जो कितने कंट्रोल्स होते हैं? 114 आईएसओ में, मतलब सीसा, सीसा के हिसाब से या जस्ट इन आईटी? नहीं नहीं, आईएसओ 27000 का बता रहा हूँ मैं, आईएसओ 27000 इंप्लीमेंट कर रहे हो कंपनी के अंदर, तो उसका बता रहा हूँ कि 114 कंट्रोल्स होते हैं उसमें। और अगर वैसे ठीक है। सीसा के हिसाब से या सीएसपी के हिसाब से देखोगे, तो सिक्योरिटी कंट्रोल जो होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारे आते हैं, ये मैंने बताया था, टेक्निकल कंट्रोल्स, डायरेक्टिव कंट्रोल्स, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, कंपनसेटरी कंट्रोल्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उसके आगे पे। अब उसके अंदर जैसे ओके। जैसे डायरेक्टिव कंट्रोल्स हैं, तो उसमें क्या होगा, सीसीटीवी होगा, इंक्रिप्शन होगा, वो सब चीजें। डायरेक्टिव कंट्रोल्स है तो उसमें पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, है ना, वो सब आते हैं उसमें exactly उसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है। ठीक जब है। हम इंफॉर्मेशन ऑडिट या स्टैंडर्ड गाइडलाइंस की बात करें, तो गाइडलाइंस का मतलब क्या समझते हो आप? मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ किस चीज के अंदर, तो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? एक बेसिक चीज है ये, क्योंकि आप एक एज ऑडिटर काम कर रहे हो, मैं आपको एक ऑडिटर मानता हूँ, यू आर डूइंग ऑडिटिंग ऑडिटर। और राइट। कंपनी के पास में कुछ गाइडलाइंस हैं, और मैं एम्प्लॉय हूँ ठीक है। कंपनी का। तो ठीक आप है। क्या समझते हो, आपकी मतलब एक बेसिक लैंग्वेज में आप क्या कहोगे, गाइडलाइंस हैं जी, ये का मतलब क्या हुआ? गाइडलाइंस बेसिकली हो गया था काम करने का तरीका, कि अगर आप कोई भी जैसे आई डोंट नो, अगर पॉलिसी सेटअप करोगे या कोई भी अगर प्रोसेस सेटअप करोगे, तो उसको सेटअप करने का जो भी तौर तरीके होंगे वो गाइडलाइन के अंदर आएंगे, जहाँ तक मतलब बेसिकली जो एक तरीके से काइंड ऑफ रूल सेट कह सकते हैं, जैसे आई थिंक पीसीआई डीएसएस की गाइडलाइन होती है हम्म। किसी भी चीज को करने के लिए, तो मतलब एक तरीके से आई थिंक दैट्स व्हाट इट वुड मीन, काइंड ऑफ लाइक गिविंग डायरेक्शन, कि ये गाइडलाइंस है, इनको फॉलो करते हुए, इनको एडहियर करते हुए आपने करना है जो भी करना है। यस, दिस इज गाइडलाइंस व्हाट। आप ये समझ सकते हो कि आपने जैसे कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, ठीक है, हाँ। रात को लेट नहीं जाना है, ठीक है, तो आपने गाइडलाइंस सेट कर दी है कि गर्ल्स के लिए कि आपको 8 बजे बाद में रुकना नहीं है। ये गाइडलाइंस है ये, ठीक। ठीक ठीक है। है। अब वो माने या नहीं माने वो उसकी मर्जी है, कि ऐसा कोई पेनल्टी नहीं है उसके ऊपर, गाइडलाइंस मतलब के ऊपर। गाइडलाइन नहीं मानने से पेनल्टी नहीं है कुछ? एक गाइडलाइंस का सजेशन हो गया, एक सजेस्टिव एडवाइस हो गई एक तरह की। अब वो एडवाइस है, एडवाइस को मानता है तो ठीक है, नहीं मानता कोई बात नहीं। अब जैसे कि पासवर्ड की बात करता हूँ, आप एक मीडियम साइज या स्मॉल कंपनी में काम कर रहे हो, आपको गाइडलाइंस मिली है कि हाँ 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, बट एज ए आपने हाँ, आपने उसको कंट्रोल में नहीं सेट नहीं किया अभी तक, मतलब आपने टेक्निकली उसको कंट्रोल नहीं किया है, तो आप एक एडवाइस कर सकते हो कि हाँ जी 8 डिजिट का पासवर्ड रख सकते हो आप। अब बंदा कोई रखता है तो ठीक है, नहीं रखता कोई बात नहीं, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उसका पास का आईडी पासवर्ड। तो गाइडलाइंस का मतलब कि एक कंपलसरी, एक ये कंपलसरी नहीं है कि वो बंदा करे या नहीं करे, मतलब वो बंधा हुआ नहीं है, बट एज ए नाइस एडवाइस हम कर सकते हैं कि हम ओके। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का हो गया, या फिर हम आईडी पॉलिसीज का हो गया, है ना। तो ये हम आईटी के लेकर कह सकते हैं कि हाँ, हाँ, सब रूम में आने से पहले आपको यानी परमिशन अप्रूवल चाहिए होता है आपको, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है कंपनी को। तो आप ठीक है। करते हैं तो ठीक है, नहीं करते कोई बात नहीं, आपका काम चल सकता है उसके अंदर, है ना। बट जब हम बात करते हैं पॉलिसीज की बात करते हैं, राइट, पॉलिसीज में आपको मानना पड़ता है, राइट। तो ओके। पॉलिसी आप जैसे हम आईटी पॉलिसीज की बात करते हैं, या फिर एचआर वट कोई पॉलिसी आप ले सकते हो एज ए व्हाट। तो पॉलिसीज में अगर आपको पॉलिसी करना है, तो आपको पहले स्टैंडर्ड जो पॉलिसीज होते हैं उसका टेम्पलेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक सेकंड, आपको सिर्फ नोट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, I'm just typing down the notes. अभी हम जो अभी बेसिक हम बात कर रहे हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, फिर हम थोड़ा और इन डेप्थ में चलेंगे इसके बाद में, कि आपको थोड़ा और ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, एडवांस अंडरस्टैंडिंग होगी आपके अंदर। अभी तो मैं आपका जैसे आपका व्यू ले रहा हूँ, मैं आपका व्यू लेने के बाद में फिर मैं आपको एक बेसिक आइडिया, एक हिंट बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली हाँ ये चीज होती है, तो आपके ठीक है। दिमाग में वो समझ चीज गया। बैठ जाएगी एग्जैक्टली।
ठीक है। फिर उसको हम एडवांस तरीके से कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको चीजों को समझना पड़ता है, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि सीजम और सीएसपी जब आप एग्जामिनेशन देते हो, राइट, यू नीड टू हाँ हाँ। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन। क्योंकि हमने हम्म। सीसा सीएसपी एग्जाम देखा है, तो एग्जैक्टली क्या होता है कि इसमें जो लैंग्वेज होती है वो काफी क्रिटिकल होती है। अगर आपने लैंग्वेज समझ लिया तो आपने बहुत कुछ समझ लिया इसके बाद में। ठीक है, तो मैं एक पॉलिसी की बात करता हूँ। तो हम एक आईटी पॉलिसीज की बात करता हूँ। पासवर्ड, आईटी पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी टेम्पलेट्स। तो देखो अभी ये क्या है कि अभी आप अपनी कंपनी का काम कर रहे हो, राइट। आपके पास में अपनी खुद की पॉलिसीज हो सकती है, राइट, कि हाँ भाई ये राइट। पॉलिसीज हैं, ये है, वो सब कुछ चीजें होती है। बट आप जब किसी कंपनी में एज ए ऑडिटर काम करते हो तो आपके पास में टेम्पलेट्स होते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको चीज पता होनी चाहिए कि हाँ इस कंपनी को गाइडलाइन चाहिए, इसको पॉलिसी चाहिए, इसको बेसलाइन चाहिए, इसको स्टैंडर्ड चाहिए, इसको वो चीज चाहिए। बस आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या चीज चाहिए, और वो चीज आपके सिस्टम के अंदर टेम्पलेट्स में होती हैं। तो टेम्पलेट्स आपको देखो, अब कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपनी पॉलिसीज नहीं देती हैं सिक्योरिटी रीजन से। आपको पता ही हो चीज तो, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल क्या करते हैं कि टेम्पलेट्स जो होते हैं वो हम टेम्पलेट यूज कर लेते हैं। आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ना इसका, आईटी ऑडिटिंग का, तो आपके पास में इंफॉर्मेशन ज़्यादा रहेगी। तो जो आप एक पासवर्ड पॉलिसी बनाओगे उसमें ओवरव्यू, पर्पस, स्कोप, पॉलिसी, जनरल, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको इसमें देनी पड़ती हैं। पासवर्ड validation, okay, access validation policy and information requirements, password protection standards, okay, और application development standards। तो इस हम पॉलिसी को करने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि एज ए साइबर सिक्योरिटी, या फिर हम एक ऐसे ISO 27000 इम्प्लीमेंट करते हैं मान लीजिए, या फिर MNIST अप्रोच करते हैं, कंप्लाइंस करते हैं। तो देखिए राइट। मैं बताता हूँ आपको, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। उसमें लिस्ट पर हो गया सीरियसली। स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी आता है उसके अंदर। I actually had to ask you something. आपके पास risk assessment जो है उसके वो पड़े हुए templates या do you have risk assessment like sample reports or something? रिस्क असेसमेंट के मैं चेक करता हूँ भाई, आई हैव नंबर ऑफ थिंग्स। तो मेरे को अपने जो पीडीएफ में ना, और मेरे पास, अगर risk assessment का आपके पास होगा कुछ तो I will need that. Mahesh, can you just give me 2 minutes? या प्लीज Just बस। give me 2 minutes. I just need a quick bio break. Just give me a second.
I'm back. Sorry about that. Yeah. Okay, no problem. तो मैं बात कर रहा था आपसे फ्रेमवर्क्स के बारे में। तो सभी का अपना अपना होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। So ये तो CSF हो गया, ये तो मेरे को पता है। नहीं, मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली ना कुछ रिपोर्ट के टेम्पलेट्स जो है, आई नीड दोस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि इन टर्म्स ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए क्या यूज कर सकते हैं, थिंग्स ऑफ दैट नेचर। एंड you know I'm trying to figure that out because I even need it for my like official purposes because I am doing it. You can do one thing, just send me the WhatsApp. So what's your requirement, so that I will going to check it out with my Okay. PDF and everything. Okay, because मेरे पास में है, हो सकते हैं काफ़ी चीज़ें हैं, बट मेरे पास में अभी मैं ढूंढूंगा तो मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं वो आपको। तो ठीक है, अभी मैं आपको भेज दूंगा लिख के, of course. ठीक है, मैं अब मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत सारे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो आपका जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं मैं है उसमें। सर्च करूंगा इसको, क्योंकि आईएसओ के भी हैं मेरे पास में, और मैं अगर बात देखूंगा तो सीजा सीआईएसपी सभी के हैं, क्लाउड के ठीक है। भी हैं। तो मैं थोड़ा सा ढूंढ लूंगा, आप मुझे भेज देना, मैं आई विल फिगर इट आउट। तो मैं आपको जो कह रहा था अभी, मुझे ये याद है। देखो, तो आई हैव नंबर ऑफ पीपल, डिफरेंट कंपनीज, सो आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑल दोस थिंग्स। तो हम जो बात कर रहे थे एग्जैक्टली, जैसा फ्रेमवर्क कोर कॉन्सेप्ट से होते हैं एग्जैक्टली, कि जैसे आईएसओ एनआईएसटी करना है आपको, 803 आईएसओ करना है, राइट। आपको कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क से चेक करना है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ये नहीं, ये एनेक्सेस होते हैं तुम्हारे एग्जैक्टली। ये A81.1.1, अब ये आपका है या नहीं है ना। इसके अंदर, किसके अंदर, फिजिकल डिवाइस एंड सिस्टम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंडोर। अब आपको फिजिकल डिवाइसेस को चेक करने के लिए आप आईएसओ कर रहे हो मान लीजिए, तो आईएसओ में आपको 8.1.1 और 8.1.2, आपको ये दो चीज चाहिए होती है। अगर कंपनी हाँ कहती है कि नहीं, हम हमें एनआईएसटी अप्रोच के थ्रू जाना है, तो एनआईएसटी के अप्रोच 853 डिवीजन जो होगा तुम्हारा, तो उसके थ्रू जाना होगा। कंपनी कहती है कि नहीं, हमें कॉबिट के थ्रू जाना है, तो आप कॉबिट का ये है तुम्हारे कॉबिट रेफरेंस। तो ये जो रेफरेंसेस मॉडल्स होते हैं, इसके थ्रू आपको काम करना पड़ता है। अब ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि एट ए 8.1.1 है या 8.1.2 है। अब आपके पास जो चेकलिस्ट होती है ना। अब चेकलिस्ट में हाँ आप चेकलिस्ट में आप चेक करोगे कि ये जो 8.1.1 है, ये चीज क्या होती है एग्जैक्टली। फिजिकल में तो होती है, फिजिकल डिवाइस का करती है, बट एग्जैक्टली किसके लिए एप्लीकेबल होती है। तो आप क्या करोगे, इसी चीज को जाके कंप्लीटली आप इसको सर्च कर लोगे कि यार ये चीज ओके है तो किस चीज के लिए। जैसे मैं अभी बात करता हूँ, ये मैं एनआईएसटी की बात करता हूँ, तो एनआईएसटी के अंदर जो अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो किस काम आता है, हाँ। वो भी आपको इसमें दिख जाता है। तो जो नेस्ट का जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये मतलब ये CSF के ऊपर बेस्ड है, जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वाला है, ये कुछ और है? ये डिपेंड करता है कि जैसे साइबर सिक्योरिटी का अलग होता है, ये एक प्रॉपर एक तुम्हारा एक गाइडेंस है, मतलब एक रेफरेंस मॉडल है ये। अब आप अच्छा क्लाउड क्लाउड सिक्योरिटी की बात कर दो, क्लाउड सिक्योरिटी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं। मैं अगर अच्छा। आपको एक क्लाउड सिक्योरिटी का मेरे पास में पड़ा हुआ है अभी एक फ्रेमवर्क, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास में, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी होती है जैसे क्लाउड के अंदर। अब आपको क्लाउड के अंदर क्या चाहिए एग्जैक्टली, सिक्योरिटी में क्या देखना है आपको, तो उसका भी एक चीज होती है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ, बस में जब पड़ा हुआ है। तो ये क्या रेफरेंस मॉडल है, अभी कोई ये मैं दिखाता हूँ मैं, क्लाउड एंड आईटी कंट्रोल्स एंड चेकलिस्ट। अगर आपको क्लाउड का मान लीजिए करना है, चेकलिस्ट में करना है, तो आप इसको मैं ओपन कर देता हूँ, देखो अभी। तो इसके अंदर आपको देखो कंप्लीटली कंप्लायंस एंड ऑडिट प्लानिंग है,
कंट्रोल आईडी 01 है, कंट्रोल स्पेसिफिकेशंस हैं, फिजिकल नेटवर्क, कंप्यूट, स्टोरेज, एप्लीकेशन डेटा। तो आपको किस चीज़ का करना है और कौन सी चीज़ के लिए एप्लीकेबिलिटी बना रखी है आपकी, है ना। तो ये जो हमने कर रहा है कि आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, इसका हम कंप्लाइंट का चेक कर रहे हैं। बट जब बात करते हैं हम ये क्लाउड सर्विस डिलीवरी मॉडल की बात करते हैं, सप्लाई रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आता अब जैसे जो कोविड में आ गया, ये हिपा कंप्लाइंस का आ गया, ये आईएसओ का आ गया, एनआईएसटी का आ गया, ये आपका फेड रैम्प का आ गया, एनआईएसटी अप्रोच आ गया, तुम्हारा ये पीसीआईडीएसएस का आ गया इसके अंदर। तो इसमें जितनी चीजें आपको दे रखी हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही इस चेकलिस्ट के थ्रू आप उसका ऑडिट करोगे। बट ऑडिट में मतलब सीजा का मतलब ये है कि सीजा में आपको करना है, आपके पास में सब चीज मिलेंगी आपको, राइट। आप ये बनाओगे, आप ये देखोगे जब किसी कंपनी में वर्क करोगे, बट आपको बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, वो आने चाहिए, आपको गवर्नेंस का आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया स्लाइड्स के अंदर, राइट, इफ यू जस्ट टेक अ लुक इनटू द स्लाइड्स की प्लानिंग में आपको कितनी प्लानिंग आपकी अच्छी हो सकती है, राइट। क्योंकि जब आप बात करते हो ISO 27000, राइट, तो उसमें क्या होता है कि लीड इम्प्लीमेंटर और लीड ऑडिटर दो चीजें होती हैं, है ना। तो लीड ऑडिटर जो होता है तुम्हारा, वो तो ऑडिटिंग कर लेता है क्योंकि उसके पास में सब चीज पड़ी होती है, क्योंकि उसको प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, राइट। कि प्लानिंग प्लानिंग मैंने करके दे दी आपको, यू जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट द थिंग्स। बट जब लीड इम्प्लीमेंटर की बात करते हैं, तो लीड इम्प्लीमेंटर में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है चीज को। हाउ डू गोइंग टू इम्प्लीमेंट, तो इम्प्लीमेंट में क्या होता है कि आपकी प्लानिंग काम आती है। और सीसा जो है, सीसा में क्या होता है कि सीसा में आपका पीसीआईडीएसएस या तुम्हारा जीडीपीआर हो गया, या फिर तुम्हारा या पीडीपीआर जो इंडिया का हो गया, या फिर आपका आईएसओ 27000 हो गया, या फिर आपका कोई भी आपका फ्रेमवर्क ले लीजिए, आपका कोई भी आईएसओ स्टैंडर्ड ले लीजिए, है ना। तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको ऑडिटिंग करना पड़ेगा, दोनों चीज आती है इसके अंदर। तो ये एक ब्रॉड अप्रोच है। आईएसओ 27000 एक डिफरेंट अप्रोच है, सीसा एक अलग अप्रोच है। सीसा मैनेजल, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, और कंपनी के एम्प्लॉय होने के नाते आप मैनेजमेंट का भी काम कर रहे हो, और साथ साथ में आप टेक्निकल चीजों का भी ध्यान दे रहे हो। बट आप इफ यू आर पार्ट ऑफ आईएसओ 27000, तो आप एक थर्ड पार्टी वेंडर बन के आ रहे हो कंपनी के अंदर, और आप वो जो कंप्लाइंस होते हैं, जो इम्प्लीमेंट करने होते हैं, या फिर जो एविडेंस होते हैं, उसको आप चेक कर रहे हो। तो दोनों में बहुत डिफरेंट फर्क होता है इसके अंदर। इसलिए जो सीजा बंदे होते हैं, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो गवर्नेंस होते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है, और जो पॉलिसीज होती हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, और जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इंटरप्राइज आर्किटेक्चर डिजाइनिंग जो होती है, वो सीजा हेल्प करता है इन सब चीजों के अंदर। ओके, तो सीज जो आपके सॉक रिपोर्ट्स होती हैं, तो सॉक रिपोर्ट्स के अलग बंदे होते हैं। बट इसको एज अगर आप मैं सीजा की बात करता हूँ, तो वो वेरीफाई करता है, एक बार चेक करता है कि हाँ क्या है क्या नहीं कंपनी। तो जैसे अब हम बात करते हैं गाइडलाइंस की, बात की हमने स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? आई आई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट समझ गए, बट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? एनी आइडियाज यू हैव, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड्स? Okay, all right. Standards. स्टैंडर्ड्स आई थिंक कंट्रोल जो है, कंट्रोल्स की गाइडलाइंस जो होती हैं, वो आई थिंक शायद स्टैंडर्ड्स होती है, जैसे मतलब स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। मैं भूल गया हूँ, आई थिंक IS नॉट IS स्टैंडर्ड, लाइक देयर इज अ पर्टिकुलर, हम लोग जिससे सिस्टम हार्डनिंग जो होती है, राइट उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, व्हिच आई डोंट रिमेम्बर कि क्या था। आई थिंक इट्स समथिंग रिलेटेड टू नेस्ट। राइट राइट। तो स्टैंडर्ड्स में हम बात करते हैं, जब आप कोई भी चीज, जैसे आप ये मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स यानी पॉलिसीज की बात करता हूँ। तो पॉलिसीज, व्हाट इज पॉलिसीज? पॉलिसीज एक डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। जैसे मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा, अभी टेम्पलेट दिखाऊंगा आपको, तो वो आपका क्या हो गया, एज ए डॉक्यूमेंट हो गया, 3 या 4 पेज का हो गया एग्जैक्टली। तो उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे ये मेरा एक पासवर्ड पॉलिसी, ये मेरा एक 3 पेज का एक, एक पॉलिसी हो गई है exact, ठीक है, एक सिंपल एंड शॉर्ट। तो ये पॉलिसीज आपके क्या होती है कि आपका कैसा होना चाहिए, आपकी पॉलिसी क्या है एग्जैक्टली, आईटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा नहीं हो रहा है, तो इसमें आप एक शॉर्ट 3 या 2 पेज का एक आप बना के पॉलिसी बना के रख देते हो कि हाँ जी, ऑनबोर्डिंग की बात करते हैं, ऑफबोर्डिंग की बात करते हैं, राइट, इनबोर्डिंग ऑफबोर्डिंग या टर्मिनेशन की बात करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोसीजर एज पर द आईटी पॉलिसीज। कि बंदा आएगा तो पहले उसको एक्सेस देना पड़ेगा हमें, ठीक है, फिर उसको लैपटॉप देंगे या उसको
हार्डवेयर देंगे, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में उसको एक्सेस मिलेगा, रीड ओनली एक्सेस मिलेगा, फिर वो 2 मंथ्स काम करने के बाद में, ट्रेनिंग होने के बाद में उसको फिर मॉडिफाई एक्सेस दे प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो वो सब चीजें मेंशन होती है पॉलिसीज के अंदर, ठीक है, गॉट इट। ठीक है। बट जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हमारा जो आईटी का स्टैंडर्ड है, यानी डेटाबेस का जो स्टैंडर्ड है, या फिर आपका फायरवॉल का स्टैंडर्ड्स है, जैसे मैं कहता हूँ राइट कि अभिमन्यु यू आर डूइंग ए पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस कंपनी है हमारी, ठीक है जी। तो पीसीआई डीएसएस कंपनी के अकॉर्डिंग हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे होने चाहिए। तो आप बोलोगे सर पीसीआई डीएसएस कंपनी है, तो पहली बात तो ये होगा कि सर हमारी जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है कस्टमर्स की, वो इन्फॉर्मेशन हमें सिक्योर करनी है, फर्स्ट थिंग। तो हमें पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हमें अपने स्टैंडर्ड को बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें जो टेक्निकल चीज करनी पड़ेगी, यानी फायरवॉल लगाना पड़ेगा हमें, फर्स्ट थिंग मैंडेटरी है पीसीआई डीएसएस के अंदर, लगा दिया। राइट। सेकंड चीज कि आपको आईडीएस आईपीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स आपको उसमें करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा, इज ट्रू, लगा दिया जी। आपको कंटेंट फिल्टरिंग, एप्लीकेशन फिल्टरिंग करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं जी आप। आपको हाई अवेलेबिलिटी करना पड़ेगा कि आपका एक फायरवॉल ऑफ हो गया, दूसरा भी चलना पड़ेगा, यानी कि आपको हाई रिडंडेंट नेटवर्क्स करना पड़ेगा, आपको जी करना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो वो आपके एक स्टैंडर्ड हो गए तुम्हारे एग्जैक्टली, कि आपका एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट कह सकता हूँ उसको मैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया होता है कि हाँ आपको ये एज पर दिस पीसीआई डीएस कंप्लायंस, एज पर द एनआईएसटी अप्रोच, एज पर द आईएसओ 27000, आपको टेक्निकल क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। तो तो पॉलिसी जो है वो क्या होता है? पॉलिसी जो नॉन टेक्निकल होता पॉलिसी में इतना टेक्निकल नहीं लिख सकते हम, आप 2-3 पेज में क्या क्या लिख दोगे आप यार। अब स्कोप ऑफ वर्क है या पर्पज है आपका, उसमें है। आप हाँ। 10-20 लाइनें नहीं डाल सकते हो। आप इसको 10 पेज का बनाओगे तो कोई पढ़ेगा भी नहीं इसको, पॉलिसीज को, हम्म। है ना। बट हम स्टैंडर्ड्स में हम थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं चीजों को, समझ बात को। गॉट इट। ठीक। स्टैंडर्ड्स ठीक में है, क्या ठीक है। होता है कि स्टैंडर्ड के अंदर कोई भी बंदा है, जैसे आप ऑडिटर हो, पहले तो आप चेक हाँ। करोगे सर आपकी पॉलिसी बताइए हमें। तो पॉलिसी 2-3 पेज की होगी तो आप समझ जाओगे हाँ जी ये है, ऑफबोर्डिंग में ये होता है, ऑनबोर्डिंग में ये होता है, में ये होता है, ठीक है। अब आपके जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स है वो किस स्टैंडर्ड पे मेंटेन करते हैं, कि आपने फायरवॉल फायरवॉल का देख लिया, आपने आपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स देखा, पॉलिसी में सिक्योरिटी कंट्रोल्स में फायरवॉल का नाम दिया होगा, ठीक है। अब हम्म। फायरवॉल में क्या इंप्लीमेंट कर रखा है वो थोड़ी दिया होगा उसके अंदर, वो तो स्टैंडर्ड पर जाओगे आपके, हाँ एज पर पीसीआई डीएसएस में आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो पीसीआई डीएसएस, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या क्या चीज इंप्लीमेंट कर रखी है वो बताइए आप। हम्म। स्टैंडर्ड, आईटी स्टैंडर्ड्स, एंड इसमें आएगा टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स में आपको बहुत सारी प्रोवाइड कर दूंगा, मिल जाती हैं ये आपका जस्ट नॉलेज लेने के लिए ओनली, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप समझ जाओ कि एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं और क्या इसमें फर्क क्या होता है। जैसे मैं आपको इसमें डिफरेंस दिया कि आपको एक आईटी पॉलिसीज में डिफरेंस ये होता है कि इसमें ओवरव्यू, स्कोप, पॉलिसीज, जनरल, है ना, ये सब चीजें लिखी होती हैं, शॉर्ट, हम्म। जितनी शॉर्ट हो सके उस उतने अंदर। नहीं 3 ज्यादा पेज का बनाओगे तो पढ़ेगा भी नहीं इस चीज को। तो 2 या 3 पेज का मैक्सिमम बनता है तुम्हारा आईटी पॉलिसीज का, कोई भी आपकी चाहे ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज हो, आईटी पॉलिसीज हो, डेटाबेस पॉलिसीज हो, कुछ भी हो सकती है आपकी पॉलिसीज। और बनती किसके अकॉर्डिंग है, वो बनती है इसके अकॉर्डिंग है। तो आपको जो एक एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें हाँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं तुम्हारे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप। तो हम जब बात करते हैं, हम सीजा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम जब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की बात की, हमने आइसो स्टैंडर्ड की बात की, गाइडलाइंस की बात की, तो बिजनेस प्रोसेस कैसे काम करते हैं। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कंपनी के पास में वो चीज है या नहीं है। एक तो होता है कि एक न्यू कंपनी है राइट, किसी कंपनी में न्यू हम्म। जा रहे हो, उसमें कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं है, आपको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, राइट। ठीक है। और दूसरा ये ठीक है। होता है कि कंपनी ऑलरेडी वर्किंग है, राइट, कंपनी इज ऑलरेडी ठीक है। वर्किंग। वहां आपको वेरीफाई करना चीजों को, और वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, वहां आपको देखना पड़ेगा गैप एनालिसिस। ये उनके जो प्रोसेस है, बिजनेस के जो प्रोसेस चल रहे हैं, राइट, दिस इज बिजनेस प्रोसेस। हम्म। जैसे आईटी पॉलिसी, एचआर के अपने प्रोसेस होते हैं, आईटी के अपने प्रोसेस प्रोसेस होते हैं, सबके अपने प्रोसेस होते हैं। तो इसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तो जो प्रोसेस चलते हैं तुम्हारे, प्रोसेस का मतलब कि ऑनबोर्डिंग का क्या प्रोसेस है जी, टर्मिनेशन का क्या प्रोसेस है, ऑफबोर्डिंग का क्या प्रोसेस है आपका, ठीक है, आपका डेटाबेस का क्या प्रोसेस है, नेटवर्क सेटअप करने का, है ना। आप कह सकते हो कि एचआर एचआर क्या क्या प्रोसेस है आपका, जो
वेंडर थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारे जो वेंडर्स होते हैं उसका क्या तुम्हारा प्रोसेस है एग्जैक्टली, उसको कैसे डील करते हो आप, इन्फॉर्मेशन कैसे सिक्योर करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात आती है तो हाउ डू यू गोइंग टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट और कंट्रोल योर इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो ठीक है। आपको जो बिजनेस के जो प्रोसेस होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। प्रोसेस को समझने का मतलब ये है कि आपको बिजनेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपका बिजनेस है क्या ये। हम्म ठीक है। अब बिजनेस को आप समझ रहे हो तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। कोई हम्म कहता है कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई कहता है मेरी रिलीज से जाने वाली है, वो क्या कहता है मेरा वर्जन कंट्रोल चेंज होने वाला है, कोई कहता है मेरा इसका प्रोजेक्ट है। तो आपको हम्म टेक्निकल एज सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपको सब चीज समझना हम्म, पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज कंट्रोल एंड चेंज वर्जन। तो आपको पता होना चाहिए चेंज वर्जन क्या होगा, चेंज कंट्रोल क्या होता है हो गया। तो आपको चेंज मैनेजमेंट पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसका मतलब वो आईटीएल का पता होना चाहिए। अब आईटीएल का मतलब हो गया कि आपको पूरा फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, है ना। तो ठीक मैंने यस प्लीज। अरे तो कहने वाला ये है कि एग्जैक्टली कि व्हाट इज जो अपना ये सीजा है फ्रेमवर्क, या फिर टॉगेट की बात करते हैं, कॉबेट की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट मेथोडोलॉजी कि क्या बेस्ट मेथड हो सकते हैं कंपनी के लिए, एंटरप्राइज जी कंपनी के लिए। ठीक है। ठीक है। अब उसमें बेस्ट मेथड के अंदर, बेस्ट प्रोसेस के अंदर, बेस्ट तुम्हारा जो स्टैंडर्ड्स के अंदर तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस काम करते हैं उसके अंदर। कि जैसे मैं हम्म एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं एक आईटीएल का एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास में एक सर्वर है, वेब सर्वर, राइट। वेब सर्वर क्रैश कर गया आपका। तो व्हाट इज द प्रोसेस, आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अपना हिसाब से बताइए कि आप, सर द वेब सर्वर गोड क्रैश डाउन, व्हाट इज आवर बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड बेस्ट बेस्ट प्रोसेस क्या हो सकता है आपके हिसाब से। वेल आइडियली अगर वेब सर्वर है तो इट शुड बी इन हाई अवेलेबिलिटी कि अगर क्रैश हो भी गया तो देयर इज अ सेकेंडरी दैट्स गोइंग टू टेक इट्स प्लेस। आई मीन दैट्स आइडियल। बाकी अगर क्रैश हो गया है कंसीडरिंग कि हमारे पास एक ही सर्वर है तो फिर उसके लाइक यू नो आई डोंट नो there'll be a certain checklist that you go and follow like you know what was the last change implemented in that server, last patching kya hui thi, you know can we go back to a restore point to get the server back up, कितना डेटा लॉस हो रहा है, मतलब इन सब चीजों को आई थिंक हम फोकस करना होगा। what are your thoughts? Yes, as a technical part, you're right, but as a managerial concepts, you are still what, lose the concepts. आप टेक्निकल में आपने सही बोला कि टेक्निकल तरीके से ये हाँ होगा, बट यार आप शीशा कर रहे हो तो आपको मैनेजमेंट का तो आना चाहिए ना। मैनेजमेंट को आप भाई बताओगे तो वो तो क्या यार, आप कर दे कहते हैं आप शीशा हो, है ना। ओके तो आपको मैनेजमेंट का भी तो पता होना चाहिए ना, मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होता है। वो आपसे पूछेंगे क्या, ठीक है, यस प्रॉब्लम इज, आई अंडरस्टैंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं ये, बट हाँ व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, व्हाट इज द बेस्ट मेथड इन द कंपनी। आपको प्रॉब्लम पता है, आपने प्रॉब्लम बता भी दी है, बट व्हाट इज द हम्म बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द कंपनी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से एज ए शीशा होल्डर। आप शीशा किया आपने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है। तो जब भी कह रहा हूँ कि जैसे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कॉबिट फ्रेमवर्क्स या टोगेफ है या फिर आपको आईटीएल है, वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। फ्रेमवर्क्स का नॉलेज होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का पता होना चाहिए आपको, यानी कंप्लायंस का पता होना चाहिए। तो आप उसके हिसाब से बात करो एज ए मैनेजर। सोचो आप, आपके जो थॉट्स होते हैं वो अभी भी टेक्निकल है, थॉट्स को आप थोड़ा मैनेजर लेवल पे लेके जाओ। मैनेजर लेवल के हिसाब से क्या होगा इसका सोल्यूशन कि सर्वर कोई क्रैश हो गया तो मतलब ये देखा जाएगा कि आई डोंट नो डेटा उस पे कितना क्रिटिकल है, उससे कितना बिजनेस प्रोसेस लॉस कितना हो रहा है और हम लोग रिकवरी टाइम कितना होगा। आई थिंक नहीं, ये आप ऐसा जो मतलब ये जो आप बात बता रहे हो, ये आप एक स्टेक होल्डर की बात कर रहे हो, जो आप एक सीईओ या फिर एक जो कंपनी के सीईओ होते हैं, या फिर आप स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हो, ये दिस इज द राइट अप्रोच। क्योंकि जो अच्छा स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सही बात पूछेंगे कि यार आपने ये की, नहीं तो यार कितना लॉस हो सकता है हमें और कितना फायदा हो सकता है, वो क्योंकि पैसे की बात करते हैं वो। ठीक है। बट एज तो ए मेरा होल्डर, आइडियली सीधा तरह बनने का क्या होगा इसके अंदर? तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो एज ए अगर हम बात करते हैं इसको, आईटीएल फ्रेमवर्क, आईटीएल के बारे में बात करते हैं, तो आईटीएल हम्म में क्या है, दिस इज द इंसिडेंट।
एक वेब सर्वर क्रैश हो गया तो एक इंसिडेंट है कंपनी के लिए। अब बोलते हैं कि हाँ यार दिस इज द इंसिडेंट। व्हाट इज इंसिडेंट मैनेजमेंट? इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है? अब इंसिडेंट मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि जो आपकी जो ऑपरेशनल जो चीज चल रही है कंपनी के अंदर उसको वो रोक रहा है, यानी कि वो बाधा बाधा पैदा कर रहा है, यानी आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर, है ना। जैसे आपका प्रोडक्शन लॉस्ट हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, ठीक है। तो आपका एक वेब सर्वर क्रैश हो गया तो उसका मतलब वो एक इंसिडेंट हो गया। अब इंसिडेंट को लॉग भी करना पड़ता है हमें, तो सर्विस डेस्क होती है तुम्हारी, टीम्स होती हैं उसको लॉक कर देती हैं, राइट। तो इंसिडेंट हो गया तुम्हारा, उसमें अर्जेंसी प्रायोरिटी सब सेट कर देती हैं टिकट के अंदर कि हाँ ये इस टाइम हुआ था, ये अर्जेंसी है, हाई प्रायोरिटी है, अर्जेंसी है, तो डिफरेंट टीम्स को वसन कर देती हैं, राइट। तो लाइक सर्वर टीम दे आर गोइंग टू चेक इट आउट कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली हम रिजॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं एज पर द एसएलए, ओके, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। एक ओएलए होता है, एक एसएलए होता है, ऑनलाइन एग्रीमेंट, है ना। ऑनलाइन एग्रीमेंट तुम्हारा होता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, है ना। और एसएलए होता है थर्ड पार्टी सप्लायर्स के बीच में, जैसे तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वर्सेस योर कंपनी। अब ठीक है, तो अभी आपने वो टिकट जो थी आपकी सर्विस सर्वर टीम ने चेक की, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू नो व्हाट, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। The same time the service desk is send this particular ticket to the problem management team. What is the use case of problem management team? What they're doing in problem management team? The problem management team is going to check it out the RCA, root cause analysis. Okay. वो RC चेक करते हैं कि ये this is a problem. What is the reason behind it? रीजन क्या था इसका? क्या ये प्रॉब्लम पहले कभी आई है या फिर नहीं आई है ना। तो वो चीज को चेक करते हैं प्रॉब्लम मैनेजमेंट टीम। तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट टीम जब चेक करके वो आरसीए भेजते हैं मैनेजमेंट को कि दिस इज द आरसीए। अब वो आरसीए में क्या लिखेंगे? वेब सर्वर क्रैश हो गया, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, सर्वर टीम ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट उसको आप आरसीए चेक करेगी, उनको भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। व्हाट इज द नेक्स्ट डिसीजन? द नेक्स्ट डिसीजन इट वुड बी चेंज मैनेजमेंट। आप उसको चेंज करो यार, नहीं हो पा रहा तो आपके पास की बात नहीं हो पा रही तो ठीक है। तो वो चेंज मैनेजमेंट टीम के पास आएगा, चेंज रेज होगा, ना। तो चेंज मैनेजमेंट टीम चेक करेगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टीम से कि यार आपके पास में इस टाइप कॉन्फ़िगरेशन का कोई सर्वर पड़ा हुआ है स्टॉक के अंदर, नहीं है, इज देयर एनी टाइप ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सो वी आर गोइंग टू चेक इट, चेंज दिस पर्टिकुलर सर्वर। बट एक बात बताएं मेरे को, अगर जैसे सर्वर क्रैश हो गया उसके अंदर जो डेटा है वो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि डेटा जो है कहीं पे रेप्लिकेट हो रहा है, बट अगर रेप्लिकेट हो रहा है मतलब ऑलरेडी कोई सर्वर वगैरह है वहां पे। नहीं, अभी तो हम डेटा की बात ही नहीं की है, डेटा की बात नहीं की अभी, अभी तो हम एक जनरल सिनेरियो को लेके चल रहे हैं। जब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वो डेटा का काम भी आएगा आगे। वो क्रिटिकल सर्वर है तभी तो प्रॉब्लम है ना यार कंपनी के अंदर। ओके, ठीक है। अब वो डेटा मतलब सर्वर क्रैश होने का मतलब ये नहीं होगा कि डेटा क्रैश हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, क्योंकि हो सकता है कि हमने सिंक्रोनाइजेशन लगा रखा हो सकता है कि हमारा डेटाबेस सिंक होता हो, दैट दैट 5 का रखा हो कॉन्फ़िगर हमने, डिफरेंशियल बैकअप या फुल बैकअप या फिर हमने वो सब बैकअप स्ट्रेटेजी लगा रखी हो, हमारा हो सकता है कि बैकअप बीम पे हो या उसकी हमने कॉपी लगा रखी हो, नेस्ट बैकअप हो, है ना, नेटवर्क एरिया स्टोरेज लगा रखा हो या फिर हमने सैन इंप्लीमेंट कर रखा हो, तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम डिजास्टर की बात कर रहे हैं, जो डिजास्टर हुआ है तो इसमें डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट डीआरएम काम आता है इसमें, है ना। तो उसमें डीआरएम के अंदर तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आपने कर रखी, बट एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो दिस इज द राइट स्टेप्स की इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, देन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटिंग ईच अदर्स एंड देन दिस थिंग्स विल बी वर्किंग, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो आपको एक बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी आप बता रहे हैं मेरे को, ये are they also in like a slide format or something कहीं पे where I can see कि there this is a logical progression in this particular way? हाँ, ये मैं आपको भेज दूंगा, इसका आईटीएल का जो है ना, आईटीएल का है पूरा, तो आपको मैं भेज दूंगा पूरा इसका स्लाइड्स का, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली कि बिजनेस कैसे होता है, कैसे कैसे टेक्निकली चीजें करती हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट इनटू दिस इन व्हाट आईटीएल और कॉबिट और व्हाटएवर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, तो यू हैव सम बेसिक फंडामेंटल्स शुड बी क्लियर, क्योंकि आप एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम तो पता ही है, सॉल्यूशन पता होना चाहिए आपको, ठीक है है, ना। ठीक है, got it, got it. So business processes are different type of processes, how they are going to run it,
तो आपको जो प्रोसेस होते हैं, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज लाइक टू चेक आउट द डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, आपको गैप निकालने हैं उसके अंदर। हाँ ठीक जी, है। ऑफबोर्डिंग ऐसे करते हो जी, ये तरीका आपका सही नहीं है जी, ऐसा करना चाहिए आपको। आप ये करते हो, ये तरीका सही नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, नहीं हमारा सब तरीका सही नहीं है, तो हमें एविडेंस बताइए आप, कितना सही है आपका। फिर आप जब बोलोगे कि ये तरीका सही नहीं है, तो आपको खुद को पता होना चाहिए तरीका सही क्या है फिर, है ना? तो वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको। आप एक ऑडिटर हो, तो आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो प्रॉब्लम निकालना तो बहुत आसान है, कोई भी निकाल देगा। बट एज ए आप बात करते हो ऑडिटिंग की, तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी पता होना चाहिए ना कि हाँ यार, दिस इज द अप्रोच आपको करनी चाहिए, और दिस इज ए अप्रोच विद ग्लोबल adoption sort of things, right? And the types of controls. So we already discussed in the previous class different type of controls and risk-based auditing planning. So different type of risk. आपको रिस्क मैनेजमेंट पूरा इसमें प्लस स्लाइड बताएंगे एक्जैक्टली। फिर भी क्वालिटेटिव रिस्क, क्वांटिटेटिव रिस्क आपको पता होना चाहिए, है ना? आप दोनों में डिफरेंस क्या है वो पता होना चाहिए आपको। और यानी कि मिटिगेशन, ट्रांसफर रिस्क, है ना, अवॉइडेंस रिस्क, रेजिडुअल अगेन रेजिडुअल रिस्क, ये सब रिस्क असेसमेंट। जो भी आप चीजें कह रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं ये लाइक ये आपके स्टडी मटेरियल लाइक स्लाइड्स वगैरह में है कहीं पे, हाँ लाइक हाँ, ये ये कहाँ? मैं दिखा देता हूँ, ये सब चीजें हैं। बट ये आप जो चीजें हैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, ये मैं आपको ना बताता हूँ। क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग टू टीच सीएसएसपी, सीजम, सीजा, तो हमारे पास में हर एक कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज का बना हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। ये जो है ना स्लाइड, ये है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा भाई। तो इसमें आप जाओगे, इसमें नीचे जाओगे आप काफी नीचे, तो आपको इसमें आपको ये सीआईए तो मिल ही जाएगा, देखो सीआईए कंप्लीट है इसमें, हाँ, सीआईए तो इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये तो मेरे है को ना? खुद सीआईए समथिंग आई रिमेंबर। हम्म, सीआईए बिकॉज़ हमने बहुत इन डेप्थ पढ़ा था सीआईए। ये आपका होगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको नीचे जाओगे, इसमें आपको पूरा रिस्क मैनेजमेंट मिलेगा, रिस्क मैनेजमेंट। इसको आप, बिकॉज़ हम विल वी बी यस, स्टडीइंग गैप आइडेंटिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, मतलब गैप आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ेंगे कि सीसा में इफ यू आर एज एन ऑडिटर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको गैप कैसे आइडेंटिफाई करने होंगे? जैसे कोई प्रोसेस है, जैसे बैकअप का कोई प्रोसेस है या लेट्स से इमेजिंग का कोई प्रोसेस है, उसके अंदर हम लोग गैप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ। तो वो पहले आपको चीजों का पता होना चाहिए, सब चीजों को पता कर लो, फिर आपके पास में नॉलेज होगी, आपके पास में चेकलिस्ट होगी, समझे? ओके। आपके पास में चीजों का पहले सबका पता होना चाहिए आपको, कि सीजा कॉबिट क्या है, टॉगअप क्या है, आईटीएल क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, सीआईए ट्राइड क्या होता है, गवर्नेंस क्या होती है, सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मैं इफ आई टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, पॉलिसी, बेस लाइंस, है ना, प्रोसीजर्स, सब आपको कंप्लीट पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है, क्या ट्रक क्या ओके। होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लेने के हाँ। बाद में फिर आप गेप ढूंढ पाओगे आप। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, हम चेकलिस्ट में चेक करेंगे, इस एज पर द चेकलिस्ट आपका ये प्रोसेस है, ये एज पर द स्टैंडर्ड है या नहीं है, ठीक है? वो बोलता है कि दिस एज पर द स्टैंडर्ड्स, so please show us some evidence at the same time. So if you're going to तो share some evidences as per the ओके। process, it's fine, okay? And like a termination, offboarding होती है, तो कोई बंदा क्या आता है कि एकदम से एचआर बोलता है कि इसका एक्सेस हटा दीजिए आप, right? If you're going to stop this access राइट। same time, okay? So this is the right, no, this is not a right approach. तो राइट अप्रोच है या नहीं है, ठीक है? और किस बंदे का करना है, किसका नहीं करना है, ठीक है? अब जैसे कि मैं बात करता हूँ मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट की, बात करता हूँ एमडीएम सॉल्यूशन, ओके? एमडीएम आजकल, जैसे आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, राइट? तो उसमें हम आउटलुक कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, आउटलुक या व्हाटएवर आपका जो ईमेल सॉल्यूशन है। अब बंदा
जब ऑफबोर्डिंग होती है तो उसका वाइप आउट करना पड़ता है हमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का, है ना। और उसका जो मोबाइल होता है उसको भी इनक्रिप्ट करना पड़ता है। अगर वो खुद का लेके आया मोबाइल, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, BIOD टेक्नोलॉजी यूज हो रही है मान लीजिए, राइट, तो हमें उसका पर्सनल मोबाइल में इंक्रिप्शन को हटाना पड़ता है और उसका जो डाटा वाइप आउट करना पड़ता है कंप्लीटली। तो वो पॉलिसीज है या नहीं है, वो सब चीजें का एविडेंस है या नहीं है, वो सब चीज करना पड़ता है कंप्लीटली, है ना। तो वो आपको पहले चीजों का सबका पता कर लो, यू जस्ट गॉट टू नो ऑल द इंफॉर्मेशंस एंड देन गो एज पर द चेकलिस्ट, देन वेरी इजी फॉर यू टू ट्रैक ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो हम जैसे रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट यानी फिजिकल डैमेज, ह्यूमन इंटरप्शंस, तो नंबर ऑफ थिंग्स वी गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर स्लाइड इन अ लेंथी मैनर। तो एसेट क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, राइट, तो वल्नरेबिलिटीज हैं। उसके अलावा तुम्हारा रिस्क असेसमेंट का तरीका क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं तुम्हारे रिस्क असेसमेंट करने के, राइट, प्रिपेयर करना है, कंडक्ट असेसमेंट, असेसमेंट करनी है तो उसके क्या तरीके हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एक सेकंड, यस, अभी आपको थोड़ा सा दिखाई देगा ये। सो प्रिपेयर फॉर असेसमेंट, आपको असेसमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट सब कुछ मिल जाएगा, बट आपको जो करने का तरीका वो नहीं मिलेगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू गोइंग टू डू रिस्क असेसमेंट, सो प्रिपेयर फॉर असेसमेंट डेव्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फ्रेम। तो आपको जो करने का क्या तरीका है, प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने माइंड को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ रिस्क हम असेसमेंट कर रहे हैं। तो सेकंड इसका तरीका है कंडक्ट असेसमेंट, explain task queue, identify threat and source of events। तो आपको identify threats, different different threats होते हैं। अब आप पूछोगे threats क्या है exactly, तो जो भी आपकी vulnerabilities निकलती है उसमें कुछ threats निकलते हैं कि आपको कुछ ओपन पोर्ट्स है मान लीजिए फायरवॉल के ऊपर, है ना, तो वो आपके लिए थ्रेट्स हैं, कोई बंदा लॉगिन कर सकता है ना। तो आइडेंटिफाई थ्रेट, सोर्स एंड इवेंट्स, आइडेंटिफाई vulnerabilities एंड प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस, डिस्पोजिंग कंडीशंस, आइडेंटिफाई करना है vulnerabilities को, डिस्पोजिंग कंडीशंस को, एंड डिटरमाइन likelihood of occurrence। Then you just going to find out कि how many times it will be going to be happen, yearly, quarterly, monthly, daily, okay, determine magnitude of impact, and if this happen then what is the impact, and then determine the risk. So you have to think like a manager that if there's a risk is there, how many times it will be there, what is the vulnerabilities, what is the threats and sort of things, and likelihood of the particular events, okay, and what is the impact if this happen, and then you can go to assign those things. So the conduct assessment and then communicate results. So then you could communicate to the top management, stakeholders, anybody who is responsible for the same, right? And the fourth one is maintain assessment. Then once you're going to do assessment, all those things, then maintain quarterly, or 6 monthly or yearly. Maintain this particular things. So this is conduct assessment, communicate results, maintain assessment, and monitoring results. So these are some steps to doing for the risk assessment sort of things. Is there like I'm just trying to figure out like broadly ये चीजें जो हैं हाँ मेरे को समझ आ रही हैं, बट जैसे रिस्क असेसमेंट जैसे CSF हो गया, उसके अंदर 5 डोमेन्स हो गई, यू हैव अ चेकलिस्ट राइट दैट यू कैन गो अप कि ठीक है CSF के हिसाब से ये चीजें हैं। वैसे ही गैप असेसमेंट के लिए मतलब जो जितने भी कंट्रोल्स है उसके अंदर गैप असेसमेंट के लिए व्हाट इज द बेस्ट वे टू काइंड ऑफ लाइक कोई उसकी चेकलिस्ट आती है या कुछ ऐसा होता है जिससे कि मतलब एज अ रेफरेंस पॉइंट आपके पास हो व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग? हाँ, मैं आपको एक चेकलिस्ट दूंगा, मैं एक चेकलिस्ट में सर्च कर लूंगा, और पड़ी हुई है चेकलिस्ट, उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा नॉलेज की आपको ये चीज करनी है। अगर वो चीज आपके पास में अवेलेबल है या नहीं है, कंपनी बोलती है कि एज पर दिस एनेक्चर, एज पर दिस पर्टिकुलर डोमेन, ये आपकी चीज है या नहीं है, राइट। तो कंपनी कहती है नहीं हमारा, हाँ जी हम करते हैं। अब वो करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, व्हाट इज अ प्रोसीजर। तो जो प्रोसेस को ही तो चेक करना है आपको एग्जैक्टली, हम वो चीज करते हैं किस तरीके से करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कंपनी में एक ही अकाउंटेंट है या 2 अकाउंटेंट है, बट उनकी जो उनमें जॉब रोटेशन नहीं है, ठीक है, जॉब रोटेशन नहीं है इसका मतलब फ्रॉड हो सकता है उसके अंदर। Okay, because there is just one owner of the, not owner but per se, कि एक ही इंसान है जो उस इंफॉर्मेशन को देख रहा है जो भी मतलब उसके पर्टिकुलर। बिल्कुल, तो जॉब रोटेशन होना चाहिए, है ना।
और ड्यू डिलिजेंस भी होना चाहिए कि किसको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी का सीईओ है तो उसको कंप्लीट पूरी इन्फॉर्मेशन है, या कंपनी का जो आईटी का ओनर है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका प्रिविलेज क्या है, किस लेवल का प्रिविलेज है उसको, है ना। तो ओके। ऐसा नहीं कि आपको एज ए ऑडिटर आपको एक एक चीज को वेरीफाई करोगे, बट आपको पता है कि कितने पानी में है कितने नहीं है। अगर वो ऊपर से पैसे खिला देते हैं तो बात अलग है, नहीं तो आप पूरा चीज चेक करोगे उसको पहले। क्योंकि आईटी में होता है एग्जैक्टली, ऑडिटर आते हैं तो इंडिया में तो थोड़ा बहुत चलता है कि थोड़ा बहुत पैसे वैसे खिलाए तो बंदा उसको ऊपर से करके निकल जाएगा। बट अगर आप तरीके से करोगे तो फिर आप कंपनी फिर कुछ नहीं कर पाएगी उसके अंदर, फिर तो कंपनी को देना पड़ेगा जो आप मांगोगे। तो थोड़ी रेस्पेक्टेड जॉब भी है इसमें, काफी अच्छा पैसा भी है, रेस्पेक्टेड जॉब भी है। आपको काफी लोग बुलाएंगे भी कि प्लीज हमारा ठीक कर दीजिए, वो भी ये हो गया। क्योंकि अभी आई एम ऑलरेडी डूइंग आईटीसी होटल्स हैं अपने इंडिया के अंदर, हाँ जी, तो हाँ जी, उनका हाँ जी। उनका नेटवर्क आईटी ऑडिट पूरा मैं ही करता हूँ ग्लोबली, ओके। इंडिया के अंदर। तो हमें पता है ओ, एग्जैक्टली कि हम जाते हैं तो क्या चीज चेक करते हैं क्या नहीं है वो। तो चीज चलती है इसके अंदर। ऐसा इंडिया में तो है, बाकी मेरे को आइडिया नहीं है आपके यहाँ पे क्या था क्या नहीं है, बट चलता है कुछ भी। नहीं, यहाँ पे भी खैर ऑडिटर तो मतलब कुछ कर तो नहीं सकते। अगर ऑडिटर, इफ एन ऑडिटर कम्स ऑन बोर्ड और वो जो मांगेगा जो कहेगा, यू कैन नॉट से नो। हम्म। People have to attend interviews, give whatever screenshot जो evidence वगैरह require होती है सब। हाँ, Like you don't have a choice. नहीं वो तो बेसिक बेसिक चीज तो रहेगी रहेगी हमेशा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। फिर ऑडिट नहीं होगा ना, Hmm. फिर इसका मतलब ऑडिट नहीं है। वो जो बेसिक चीजें Right. होती हैं उसमें कंप्रोमाइज तो नहीं हो सकता उसके अंदर। जो ऑडिट एविडेंस चाहिए उन्होंने, मान लीजिए कि सपोज यू आर व्हेन यू आर डूइंग सम यू नो व्हाट, वेंडर से सप्लाई करते हो परचेज करते हो तो आपको इनवॉइस तो देना पड़ेगा, वो भी विद इन 3 मंथ्स का। Mm-hmm. आप बोलोगे नहीं मेरे पास में 3 मंथ्स का नहीं है, 6 महीने 6 मंथ्स पहले का, तो इट्स नॉट वैलिड फॉर मी एज ऑडिटर। Right. मैं आपको बोलूंगा कि मेरे को वही 3 मंथ्स का कोई सी का डेट, कोई सी भी डेट का दे सकते हो, ठीक है, ये मान सकता Right. है बात। बट एज ए मैं स्ट्रिक्ट ऑडिटर हूँ तो मैं बोलूंगा नहीं, पिछले 7 डेज में आपकी जो 4 एंट्रीज दिखाई दे रही हैं उनमें से मुझे 7 डेज का ही दीजिए मुझे कोई ना कोई। तो ठीक ऐसे भी है। हो सकता है ना। तो वो तो फिर बातें कुछ आगे जा सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। तो हमने इस चीज को देखा, राइट। तो रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लानिंग, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क मैनेजमेंट को आप कंप्लीटली देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। Mm-hmm. टाइप्स ऑफ ऑडिट्स एंड असेसमेंट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट करते हैं इसके अंदर, असेसमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, तो हम रिस्क के अकॉर्डिंगली कैसे कैसे होती है तो उसको हम प्लानिंग फेज में ले आएंगे। देन द एग्जीक्यूशन ऑडिट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आपका जो मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ऑडिट का, तो आप स्टेक होल्डर्स को आप जैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्लानिंग कर ली है, आगे बताओ। Stakeholders को क्या करना होगा मतलब in time of execution? हाँ, एग्जीक्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करने जा रहे हो, हाँ जी क्या करना है बताइए आप। Well, stakeholders का buy-in पहले तो होना होगा execution के लिए कि stakeholders have to be on board for whatever execution needs to be done, and मतलब they have to be given like I think steps of execution depending on जो भी change control process है हम्म, उसके थ्रू जाते हुए कि okay, this is what we are doing, these are, this is all the due diligence that has been done, this is the scope, फिर उसके हिसाब से execution होगा। This is what I can think of. और सबसे पहले कम्युनिकेशन होगा डियर। कम्युनिकेशन, जैसे कि आप मान लीजिए कंपनी में वर्क भी कर रहे हो और मैं एज ए आईटी ऑडिटर आता हूँ उसके पास में, ठीक है। Right. तो आपको पहले तो शेड्यूल बनाना फिट करना पड़ेगा ना, शेड्यूल क्या है आपका, यानी कौन से डेट को ऑडिटर आ रहे हैं, कौन सी टाइप का ऑडिट होगा, कौन से डेट को कौन सा ऑडिट होगा, पूरा कंप्लीट शेड्यूल होता है एक बीएसआई का। मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा, टेम्पलेट से होता है इसका पूरा। तो उसमें Okay. कौन से डेट को आ रहे हैं, कौन से डेट को कौन सा ऑडिट हो रहा है, कौन से डिपार्टमेंट को देना है, कि ऐसा नहीं कि जैसे आपकी कंपनी में 5,000 एम्प्लॉयज हैं तो सभी का एक बार में कर दूंगा मैं, ऐसा नहीं। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का डिफरेंट हाँ, डिफरेंट एक डेट वो को, है ना, schedule बनता है, I know, I है ना, can तो पूरा understand that. शेड्यूल बनता है पूरा वो। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं, तो वो कैसे डील करते हैं, मतलब उनको पहले से कम्युनिकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है, कम्युनिकेशन रखना पड़ता है उनको। हाँ, जैसे अगर आप इंटरनल ऑडिटर है उनके पास में, तो पहले वो हाँ, सबको गाइड करता है कि पहले वो इंटरनल ऑडिट करता है पहले आने से पहले, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट होगा उससे पहले इंटरनल ऑडिट होता है कंपनी के अंदर। right. तो वो एक्सटर्नल ऑडिट आने से पहले वो जब आएगा तो उसके डेट वेट सब कुछ बताएगा, वो चेक करेगा, टाइमिंग बिठाएगा, शेड्यूल करेगा सब कुछ। तो ऐसे काम होता है कम्प्लीटली। सैम्पलिंग मैथोलॉजी आपने देखा ही था कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को करोगे उतना आपको दिखेगा सैम्पलिंग। जैसे आपने सैंपल्स आपके 100 इनवॉइस है, मान लीजिए आपने 20 या 30 इनवॉइस देख के आप ये नहीं कह सकते कि 70% आगे बिल्कुल सही होंगे।
तो आपको या तो प्रॉपर सही करो या फिर आप 2-3 सैंपल से आप कर सकते हो, तो वो सब चीजें करते हैं इसमें। ऑडिट एविडेंस कलेक्शन एंड टेक्निक्स, तो एविडेंसेस की बात करते हैं तो आप जैसे मैं कहता हूँ कि आपको फाइनेंस का ऑडिट करना है, क्योंकि एज ए आई सीसा बंदे हो, आपको फाइनेंस का भी है या फिर आपका अ, मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको जो पेंट्री बॉयज होते हैं या फिर तुम्हारा जो एडमिन होता है एडमिन का है, एडमिन का आपको करना है, मान लीजिए आपको ओके। ऑडिट करना है, तो आप क्या चेक करोगे उसमें अंदर? आपको थोड़ा सा मतलब आईएसओ 27000 के अलावा भी बहुत सारे ऑडिट होते हैं, है ना, आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट, तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हाँ यार 9001 है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो क्वालिटी मैनेजमेंट आपसे करवा रहे हैं, बट आपको पता है कि हाँ यार क्वालिटी मैनेजमेंट में ये कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी को जो फायर एग्जॉस्टर होते हैं वो होने चाहिए, है ना, उनके जो लॉक्स होते हैं फिजिकल सिक्योरिटी का आपको पता होना चाहिए, है ना। अब ओके। जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो वो फायर अलार्म्स होने चाहिए जो बंदे बच सके, है ना, जो प्रिमिटिव सिक्योरिटी, पैरामीटर सिक्योरिटी बोलते हैं उन्हें, है ना। ओके। तो वो सब चीज़ें आपको थोड़े बेसिक चीज आने चाहिए, यानी फिजिकल सिक्योरिटी लेवल के ऊपर आपको भी होना चाहिए, क्योंकि एज ए ऑडिटर आप काम करते हो तो उसके अंदर जो एनेक्स्चर्स पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर आपको ये सब चीज मिलेंगी चेकलिस्ट में, यू जस्ट फाइंड ऑल दोस थिंग्स, बट कुछ चीजें होती है चेकलिस्ट में नहीं होती हैं, हमारी चेकलिस्ट आपको नहीं मिलती है, फिर आप कैसे करोगे, तो वो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे आप 1-2 साल करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज का कि हाँ यार स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, तो वो सब आपको ओके। आना चाहिए। I'm तो just trying to figure out कि इसके बारे में क्या, तो मतलब बेसिकली जितने भी ये फ्रेमवर्क्स आप बता रहे हो जो आईएसओ के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब इनको लेके बैठ के आई नीड टू स्टार्ट स्टडीिंग देम, इज देयर लाइक एन एब्रिज्ड वर्जन जो थोड़ा मतलब इज देयर एनी काइंड ऑफ अ ब्रीफ वर्जन आप दैट्स देयर दैट आई ISO कैन गो थ्रू? just going to do ISO 27001 एंड 2013, आप इसको स्टडी कर लीजिए एक बार थोड़ा सा, और 9001 को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतना कुछ नहीं है। इसके अलावा फ्रेमवर्क्स में बात करता हूँ मैं या फिर, है ना, तो एक बार आप आईटीएल को जरूर देख लीजिए, आईटीएल को देख लीजिए, और इसके अलावा टॉगेफ को और कॉबिट को, ये थोड़ा सा मैंडेटरी ओके। है, ठीक है। और अगर हम कंप्लाइंस की बात करता हूँ तो थोड़ा सा पीसीआई डीएसएस और हिपा कंप्लाइंस, फिज्मा और सॉक्स, ये जो 4-5 ओके। कंप्लाइंस है, ये थोड़ा बेसिक बेसिक आप नेट पे या गूगल कर लीजिए, तो आपको थोड़ा सा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा, तो आप ऑडिटिंग में आपका बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब मैं आगे जब कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास में एक्विजिशंस का, ओके। मर्जर्स का, इस सब चीज़ों का, क्योंकि हमने जो पिछली, है ना, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में या इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन डेवलपमेंट में और या फिर बिजनेस बेसलाइन में, ऑपरेशंस में काम आते हैं। और ओके। इन्फॉर्मेशन ऑलराइट। एसेट्स की बात करें तो आपको जैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनती हैं, राइट, तो आपको थ्रेट मॉडलिंग बनती है, थ्रेट मॉडलिंग, है ना, सिक्योरिटी राइट के राइट अंदर। राइट तो आपको राइट कंपनी जितनी एसेट्स होती हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हो सकती हैं, राइट, तो यू राइट। हैव नीड टू गो ऑल द आइडियाज अबाउट एवरीथिंग कि यार क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो वो से आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी होगा उससे। एंड आई विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट गोइंग टू, मेरे पास में जो टॉगफ के बहुत सारे हैं मेरे पास में अभी, ये पीपीटी है, मैं आपको ये जो टॉगफ 9 का जो मेरा बैच चलता है, जो मैं आपको भेज दूंगा, तो आपको ये जो सिक्योरिटी इंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, डिजाइनिंग होता है कम्प्लीटली, इसका हाँ। आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा आपको उससे, ठीक है। ओके। राइट। आपने मेरे को आईएसओ 27001, एक और आपने आईएसओ बताया था कौन सा, 2013, व्हाट वाज दैट? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये भी आईएसओ का ही पार्ट है, ये 27000 का ही पार्ट है। सर्च करना होगा। दिस इज वन। 2013, गॉट इट गॉट इट। तो ये जो चीजें होती हैं 2013 वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है ये, कि इधर देखेंगे ना आप, ये आईएस 27001 2013 दिखा है इसमें, तो ये आपको जैसे भी जो भी आप करोगे ना, तो सब में आपको ये मिलेगा, 2013 मिलेगा आपको, राइट, नेक्स्टर्स। ओके। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए exactly कि एनआईएसटी, आईएसओ, कॉबिट, है ना, कौन से में कौन सा काम आता है, तो ये आपको चेकलिस्ट मिल सकती है, आपको ये रेफरेंस मॉडल मिल सकता है, बट करना तो हाँ आपको ही हाँ। पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा। गॉट इट गॉट इट। ठीक है। I'll start reading up on these.
I think हमारा क्लास का टाइम तो ऑफिशियली तो खत्म हो चुका है. If you have another batch or something, you can do that tomorrow. I'll make sure that I am on time. Yes, yes, that's why I'm just going to please wait. Because this is the person from US, okay. So इसको थोड़ा सा सिक्योरिटी का है इसका बैच, तो मैं भी इसको start ठीक है, करता तो आप अपने आप इसको पढ़ाइए, कोई बात नहीं. हम लोग कल मुलाकात हुई थी. हूँ. Okay, I'll okay, make sure that perfect. I'm on time tomorrow. Thank you, Mahesh. You have a good day. Sorry Okay, about the delay. All okay, right. no problem. Take care. Bye.